Which of the following reflects back more sunlight as compared to the other three? Which of the following? अच्छा, अल्बेडो इफेक्ट तो ये है लैंड कवर्ड विथ फ्रेश स्नो. ठीक, अल्बेडो इज अ मेजर ऑफ सरफेस रिफ्लेक्टिविटी. फ्रेश स्नो इज एन अल्बेडो ऑफ 80 to 85%, मीनिंग इट रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द सनलाइट. Desert, cropland and prairies have much lower albedo values, absorbing more sunlight. ये absorb करते हैं. Sand, moderate albedo 30 to 40%, reflect less than soil. Paddy crop, low albedo 20 to 25%. Land covered with fresh snow, high albedo 80 to 85%. Prairie land, moderate albedo 25 to 35%. The technique to integrate and mark the image of three-dimensional image डायमेंशनल ऑब्जेक्ट मतलब थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को वो करना है, इंटीग्रेट करना है, तो किस तरीके से? होलोग्राफी से करेंगे. होलोग्राफी इज अ टेक्निक यूज टू रिकॉर्ड एंड रिप्रोड्यूस 3D इमेजेस. इट यूजेज लेजर लाइट इंटरफेरेंस टू क्रिएट 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट. होलोग्राफी इज यूज इन सिक्योरिटी सिस्टम, मेडिकल इमेजिंग एंड 3D फिल्म्स. ऑडियोग्राफी रिलेटेड to sound recording. Lexicography, dictionary compilation. Photography, 2D images. Holography, 3D imaging. Which of the following is used to take 3D dimensional picture? Holography. ठीक, just generating of images on a screen by focusing electronic beam on a phosphorus coated screen is called raster scan. अच्छा, the generating of images on a screen by focusing an electronic beam on a phosphorus coated screen. अच्छा, phosphorus coated स्क्रीन पे इलेक्ट्रॉनिक बीम से स्क्रीन बनाना किसकी वजह से? रोस्टर स्कैन इसको कहते हैं, रेस्टर स्कैन. इज यूज्ड इन CRT कैथोड रे ट्यूब डिस्प्लेज where an electron beam scans the screen in horizontal lines. It is used in televisions, oscilloscope and old computer monitors. Raster scan. Radar scan used in radars, not in CRTs. Cathode ray tube is used in raster scanning, मतलब इलेक्ट्रॉनिक बीम से फॉस्फोरेट कोटेड स्क्रीन पे फोकस किया जाए तो जो इमेज बनते हैं उसको रेस्टर स्कैन कहते हैं. Raster scanning is used in cathode ray tube displays where an electron beam scans the screen in horizontal lines. ठीक, the Raman effect deals with the light rays passing through all transparent medium. Raman effect discovered by C.V. Raman in 1928 states that when light passes through a transparent medium, a small fraction of it is scattered at a different wavelength. Used in Raman spectroscopy for chemical analysis and material identification. ठीक, ओनली फ्लूट्स नहीं, वर्क्स इन ऑल ट्रांसपेरेंट मटेरियल. ओनली प्रिज्म भी नहीं, डायमंड भी नहीं. फॉर रिप्रोड्यूसिंग साउंड ए CD ऑडियो प्लेयर यूजेज लेज़र बीम. मतलब साउंड को रिप्रोड्यूस करने के लिए एक कंपैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर क्या यूज़ करता है? लेज़र बीम. CD प्लेयर यूज ए लेज़र बीम टू रीड डाटा स्टोर्ड एज ए माइक्रोस्कोपिक बिट्स ऑन द डिस्क सरफेस. ठीक, द लेज़र रिफ्लेक्ट ऑफ द डिस्क. हाँ, एंड एन ऑप्टिकल सेंसर कन्वर्ट्स वेरिएशन इनटू साउंड सिग्नल. लेज़र बीम रीड करता है डाटा को और वो क्या करता है? स्टोर्ड एज अ माइक्रोस्कोपिक, वो माइक्रोस्कोपिक पिट्स की तरह स्टोर होते हैं डिस्क सरफेस पे, और वो लेज़र क्या करता है? कन्वर्ट वेरिएशन इनटू साउंड सिग्नल्स. क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स यूज्ड इन वॉचेस एंड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल. टाइटेनियम नीडल, विनाइल रिकॉर्ड यूज्ड इन विनाइल रिकॉर्ड. लेज़र बीम, CDs, DVDs एंड ब्लू-रे. बेरियम टाइटेनिक सिरामिक्स यूज्ड इन कैपेसिटर्स. अरे, बेरियम टाइटेनिक सिरामिक यूज्ड इन कैपेसिटर्स. Quartz crystal used in watches and frequency control. Quartz crystal used in watches and frequency control, not CDs. Quartz crystal. Titanium needle used in vinyl records. Laser beam
used in CDs, DVDs and Blu-rays, barium titanium ceramic used in capacitors. When a CD is seen in sunlight, rainbow-like colors appear. This is due to reflection and diffraction. CDs have a series of closely spaced grooves that act as diffraction grating, splitting light into different colors. Reflection of light of the metallic surface enhances this effect, creating the rainbow-like colors. ठीक, रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रेक्शन बोथ फिनोमिना आर रिस्पॉन्सिबल एक बार इसको देख लिया जाए। क्वार्ट्ज क्रिस्टल किस में यूज होते हैं? वॉचेज और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में होते हैं। टाइटेनियम नीडल विनाइल रिकॉर्ड में होता है। लेज़र बीम सीडी डीवीडी ब्लू रेज में होता है। बेरियम टाइटेनिक सिरेमिक कैपेसिटर में होता है। टेलीविजन सिग्नल्स कैन नॉट बी रिसीव्ड बियॉन्ड ए सर्टेन डिस्टेंस बिकॉज the surface of the earth is curved. Television signals are electromagnetic waves, radio waves that travel in a straight line of sight propagation. Due to curvature of earth, after a certain distance, the signal go beyond the receiver's reach. This is why the television transmitter requires relay stations or satellites to ensure uninterrupted signals over long distance. मतलब क्योंकि लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करती है, रेडियो वेव्स स्ट्रेट ट्रेवल करता है, इस वजह से। द टेक्निक यूज टू ट्रांसमिट ऑडियो सिग्नल इन टेलीविजन ब्रॉडकास्ट इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एफएम होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। टेलीविजन ब्रॉडकास्ट यूज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन फॉर ऑडियो सिग्नल्स बिकॉज एफएम हैज़ हाइयर रेसिस्टेंस टू नॉइज एंड इंटरफियरेंस। मतलब वो नॉइज और इंटरफियरेंस को रेसिस्ट करता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज यूज फॉर video signal in analog television, but FM is preferred for audio due to better sound quality and stability. फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आवाज की और ऑडियो और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वीडियो के लिए। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वीडियो के लिए, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है आवाज के लिए। एफएम एम्पलीट्यूड यूज्ड फॉर वीडियो ट्रांसमिशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन प्रोवाइड क्लियरर साउंड विथ मिनिमल इंटरफियरेंस। पल्स कोड मॉड्यूलेशन यूज्ड फॉर डिजिटल ऑडियो इनकोडिंग। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन। टीडीएम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। पल्स कोड मॉड्यूलेशन डिजिटल ऑडियो इनकोडिंग के लिए। In the human eye, light rays gets transformed into neural impulses at retina. Retina पे ही इमेज बनता है। Retina contains photoreceptor cells, rods and cones. रॉड और कोन्स यहाँ हैं अपने रेटिना पे, विच कन्वर्ट लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट आर ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन वाया ऑप्टिक नर्व। यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल और यही जो है ब्रेन को ऑप्टिक नर्व से भेजते हैं। रोड्स हेल्प इन लो लाइट विजन। रोड क्या करता है? लो लाइट विजन को देखने में मदद करता है। कोन्स कलर परसिपिटेशन, कि मतलब कौन सा कलर है उसको मतलब बताने में मदद करता है कोन्स। ठीक, कोन्स कलर रोड्स लो लाइट विजन। कॉर्निया ये बेंड करती है लाइट को। ठीक, डज नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू इम्पल्सेस। रेटिना इम्पल्स में बदल के ब्रेन को भेजता है। रेटिना कंटेन्स फोटोसेप्टर सेल्स, रोड्स और कोन्स, ठीक, विच कन्वर्ट लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट आर ट्रांसमिटेड टू ब्रेन वाया ऑप्टिक नर्व। रोड्स हेल्प इन लो लाइट विजन व्हाइल कोन्स इनेबल कलर प्रेसिपिटेशन। प्यूपिल कंट्रोल्स लाइट एंट्री, डज नॉट प्रोसेस इट। ठीक, रेटिना रिस्पॉन्सिबल फॉर इमेज फॉर्मेशन एंड न्यूरल ट्रांसमिशन। लेंस focuses light but does not generate neural signal. रेटिना जनरेट करती है। The image formed on the retina is smaller than the object but inverted, मतलब inverted रहता है और smaller than the object. The convex lens, अपने आँख क्या है? convex lens है। ठीक, अब the eye forms a real inverted and smaller image on the retina. ब्रेन प्रोसेसेस एंड फ्लिप्स द इमेज अपराइट, मतलब जो अपना ब्रेन है वो इसको देखता है और उसको अपराइट कर देता है, सीधा कर देता है, अलाउइंग अस टू परसीव इट करेक्टली। ठीक,
Equal to the object but inverted. Image is smaller image but straight. Image is inverted, smaller than the object but inverted, matches optical physics. ठीक, the image formed on the retina is smaller than the object but inverted. Which type of image of an object is formed on the eye lens and the retina? Inverted and real. Convex lens on the eyes form a real, inverted and smaller image on the retina. Brain corrects the inversion so we perceive object upright. ठीक, erect and real images can't be virtual. इन्वर्टेड एंड रियल, एक्चुअल इमेज फॉर्मेशन जो होता है वो इन्वर्टेड रियल होता है, इन्वर्टेड और रियल होता है, और स्मॉल इन साइज होता है रेटिना पे. द प्रिंसिपल रीजन वाई इट इज़ बेटर टू हैव टू आइज देन वन इज दैट इट इनहेंसेस डिस्टेंस एंड डेप्थ परसेप्शन. मतलब डिस्टेंस और डेप्थ का क्या जो परसेप्शन है उसको क्या करता है, ये इनहेंस करता है. Humans have stereoscopic vision which allows depth perception and distance estimation. Two eyes see the same object from slightly different angles and the brain combines them into a single 3D image. इस वजह से दो आंखें हम लोगों की हैं क्योंकि हम लोग डिस्टेंस और डेप्थ को अलग अलग एंगल से उसको देख के समझ के हाँ एक समझ सकें, और फिर जो है हमारा रेटिना सिग्नल दे हमारे दिमाग को और हमारा दिमाग एक 3D इमेज बना सके. ठीक, द ब्रेन कंबाइंस देम टू सिंगल 3D इमेज. ठीक, डिस्टिंग्विशिंग कलर परसेप्शन इज बेस्ड ऑन कोन सेल्स नॉट बाइनोकुलर विजन. सीइंग द डिम लाइट रोड सेल्स in the retina determine the dim light vision. Mosaic vision seen in insect not humans. Enhancing depth perception. Correct. Stereoscopic vision provide 3D perception. Direct viewing of the sun during the total solar eclipse causes irreversible damage to the eyes. The retina burn is caused by which component of the sun's rays? Ultraviolet rays. इनकी वेवलेंथ कम होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है. लुक एट द सन ड्यूरिंग एन एक्लिप्स विदाउट प्रॉपर प्रोटेक्शन कैन कॉज सीवियर रेटिना बर्न ड्यू टू हाई एनर्जी यूवी रेडिएशन. यूवी रेज डैमेज रेटिनल cells permanently leading to vision loss. Heat from sunlight does not directly damage the retina. Rainbow white light does not cause eye damage. Ultraviolet UV rays cause permanent eye damage. Infrared can cause heat burns but not direct retina burn. Consider the following statement. Light of a longer wavelength is scattered much more than the light of shorter wavelength. ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इसी की वजह से देखिए जो शॉर्टर वेवलेंथ होता है वो स्कैटर करता है ज़्यादा, और इसी वजह से हम लोगों का जो आसमान है वो नीला दिखाई देता है. असल में वायलेट ज़्यादा स्कैटर करता है, वायलेट और ब्लू. ठीक, लेकिन ब्लू ही हमारी आँख मतलब सबसे ज़्यादा देखती है. द स्पीड ऑफ विजिबल लाइट इन वाटर इज 0.95 टाइम द स्पीड ऑफ इन वैक्यूम. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय रैपिडली ऑस्किलेटिंग इलेक्ट्रिकल करंट्स. ये सही है. टू डिटेक्ट ओवर स्पीडिंग व्हीकल पुलिस यूज डॉपलर इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्टेड शॉर्ट रेडियो वेव्स. ये भी सही है. स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है क्योंकि शॉर्टर वेवलेंथ ब्लू और वायलेट इज स्कैटर्ड मोर देन द लॉन्गर वेवलेंथ रेड एंड येलो. ठीक, दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय रेले स्कैटरिंग विच स्टेट दैट स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/4 ऑफ द वेवलेंथ. ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/4 ऑफ वेवलेंथ. स्टेटमेंट 2 द एक्चुअल स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज अबाउट 0.75 टाइम्स द स्पीड इन वैक्यूम. रेडियो वेव्स आर जनरेटेड बाय ऑस्किलेटिंग इलेक्ट्रिक करेंट्स इन एंटीनाज. ठीक, जो इलेक्ट्रिक करंट एंटीनाज में जा रहा है उसी की वजह से जनरेट होती हैं. द डॉपलर इफेक्ट इज यूज्ड बाय स्पीड रडार्स टू मेजर व्हीकल स्पीड बाय डिटेक्टिंग फ्रीक्वेंसी शिफ्ट इन रिफ्लेक्टेड रेडियो वेव्स. कैसे फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो रही है उसी को देख के क्या होता है, अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि ये ओवर स्पीड कर रही है कि कम स्पीड में है. अब ये डॉपलर इफेक्ट क्या है, सिंपल वर्ड में समझें तो द इंक्रीज और डिक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी
of sound, light or other waves as the sources and observer move towards or away from each other. तो वही क्या है, डॉपलर इफेक्ट है। ठीक। और सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है डॉपलर का? द पिच ऑफ सायरन ऑन एन एम्बुलेंस और ए फायर इंजन। यू मे हैव नोटिस दैट एज ए फास्ट मूविंग सायरन passes by you, the pitch of the siren abruptly drops in pitch. At first the siren is coming towards you when the pitch is higher. ठीक। और अब देखते हैं एक और भी वो है रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट फिनोमिना ऑफ डॉपलर इफेक्ट। डिस्क्राइब हाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चेंजेस ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ लाइट सोर्स ऑफ एन and an observer. Red shift occur when a source moves away or causing wavelength to appear longer. मतलब जब रेड शिफ्ट फिनोमिना कब होता है? जब कोई चीज़ दूर जा रही हो। और ब्लू शिफ्ट फिनोमिना जब वो पास आ रही हो, क्योंकि ब्लू क्या है उसका वेवलेंथ छोटा है। ठीक। अब आगे जाते हैं हम लोग एजर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। In a motion picture, usually 24 frames are projected per second over the whole length of the film. An image formed on the retina of the eyes persists about 0.1 second after the removal of stimulus. ऐसा कुछ नहीं है। Movies work on the principle of persistence of vision, where at least 24 frames per second flips create an illusion of continuous motion. मतलब मूवीज किस प्रिंसिपल पे काम करती हैं? परसिस्टेंस ऑफ विजन पे, जहाँ लगभग 24 फ्रेम पर सेकेंड एक इल्यूजन बनाता है कंटिन्यूअस मोशन का। दिस स्टैंडर्ड फ्रेम रेट प्रिवेंट्स फ्लिकरिंग एंड इंश्योर्स स्मूथ वीविंग। ये हम लोगों की फ्लिकरिंग को प्रिवेंट करता है और एक स्मूथ वीविंग देता है। फ्लिकरिंग मतलब क्या होता है देखा जाए? अच्छा, मतलब प्रिवेंट्स फ्लिकरिंग मतलब अस्थिर। द एक्चुअल परसिस्टेंस ऑफ द विजन लॉस्ट फॉर अबाउट 1/16 पर सेकेंड, यानी कि 0.0625 सेकेंड, नॉट 0.1 सेकेंड। दिस इफेक्ट अलाउज इमेजेस टू ब्लेंड सीमलेसली इन रैपिड सक्सेशन, क्रिएटिंग मोशन परसेप्शन। द कलर ऑफ ए स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स टेम्परेचर। ये कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेते हैं। जैसे जो मूवीज़ होती हैं वो 24 फ्रेम का इस्तेमाल करती हैं। ये किस प्रिंसिपल पे काम करती हैं? परसिस्टेंस ऑफ विजन पे। ठीक। और ये 20 फ्रेम्स पर सेकेंड फ्लिप पर 24 फ्रेम्स पर सेकेंड पे काम करती हैं। और हमारी जो आँख है वो 1/16 सेकेंड में ही ये दिमाग को पहुंचा देता है। द कलर ऑफ ए स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स टेम्परेचर। सही है। द कलर ऑफ ए स्टार इज डिटरमाइंड बाई इट्स सरफेस टेम्परेचर एज पर प्लैंक्स लॉ। हॉटर स्टार्स एमिट मोर ब्लू वायलेट लाइट वाइल कूलर स्टार एमिट रेड लाइट। मतलब जो हॉट रहेगा वो ब्लू या वायलेट लाइट देगा और जो कूल रहेगा वो रेड लाइट देगा। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टार्स बेस्ड ऑन टेम्परेचर एंड कलर। ब्लू स्टार 25,000 K to 50,000 केल्विन, हॉटेस्ट जैसे रीगल है। वाइट स्टार 7,500 to 10,000 7,500 to 10,000 केल्विन, इंटरमीडिएट टेम्परेचर जैसे साइरस है। येलो स्टार 5,500 K to 6,000 केल्विन, मॉडरेट है जैसे सन है। रेड स्टार 2,000 K to 3,500 K, कूलेस्ट है जैसे बीटिल गैस है। और ऑप्शन देखा जाए डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, गलत, क्योंकि कलर इज नॉट अफेक्टेड बाय डिस्टेंस टेम्परेचर। कलर फॉलोज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ल्यूमिनोसिटी क्या होता है? रिलेटेड टू ब्राइटनेस नॉट कलर। डिस्टेंस फ्रॉम द सन, गलत, डिस्टेंस डज नॉट अफेक्ट कलर। डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर टेक्स प्लेस ड्यू टू डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स की वजह से डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन ऑफ लाइट या स्कैटरिंग अकर्स व्हेन लाइट interacts with small particles in the atmosphere. Dust, air molecules and pollutants scatter light, affecting how we see the sky. Rayleigh scattering, small particles scatter short wave light, blue more। देखिए मतलब जो शॉर्ट वेव
लेंथ की लाइट्स होती हैं या वेवलेंथ लाइट होती हैं वो ज़्यादा स्कैटर करती हैं, जैसे स्काई अपीयर्स ब्लू, इसी की वजह से। मी स्कैटरिंग लार्जर पार्टिकल्स, डस्ट स्मोक स्कैटर ऑल वेवलेंथ इक्वली। ठीक, लार्जर पार्टिकल्स डस्ट स्मोक स्कैटर ऑल वेवलेंथ इक्वली, जैसे फॉग एंड वाइट ग्लेयर। इस वजह से जो फॉग और वाइट ग्लेयर हम लोग को वाइट दिखता है, बादल बादल हम लोग को वाइट दिखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इनकरेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड absorb infrared radiation but does not cause लाइट डिफ्यूजन। इंफ्रारेड रेडिएशन 700 नैनोमीटर से ज़्यादा का वो होता है, यानी कि लॉन्ग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है। डस्ट पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कैटरिंग एंड डिफ्यूजन। हीलियम, इट इज़ टू लाइट टू कॉज डिफ्यूजन। वाटर वेपर कंट्रीब्यूट टू हेज, मतलब ये बनाने में करता है। जैसे हेज कैसे समझाऊँ मैं, जैसे धुंध धुंध नहीं होता है, उसको बनाने में वाटर वेपर काम करता है। द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय इट्स वेवलेंथ। वेवलेंथ से डिटरमाइन होता है उसका कलर। वेवलेंथ डिटरमाइंस द कलर ऑफ लाइट इज द विजिबल स्पेक्ट्रम इन द विजिबल 400 to 700 नैनोमीटर। शॉर्टर वेवलेंथ हाइयर एनर्जी वाइट और ब्लू, लॉन्गर वेवलेंथ रेड लोअर एनर्जी। ठीक, एम्पलीट्यूड क्या डिटरमाइन करता है, ब्राइटनेस को। वेवलेंथ डिफाइंस परसीव्ड कलर, इंटेंसिटी रिलेटेड टू एनर्जी, वेलोसिटी कांस्टेंट इन ए मीडियम डज नॉट डिफाइन कलर। वेवलेंथ क्या बताता है हम लोगों को कि लाइट की क्या कलर है। ठीक, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हाँ, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज लेस देन वायलेट लाइट। नहीं नहीं, वेवलेंथ रेड लाइट का अधिक है। वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन द वायलेट लाइट, सही है। वेवलेंथ ऑफ वायलेट इज मोर देन द ग्रीन लाइट, नाना विबग्योर जी, ग्रीन का गलत से जाते हैं। वेवलेंथ ऑफ वायलेट, वायलेट का सबसे कम वेवलेंथ है और इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। रेड लाइट हैज़ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड वायलेट हैज़ शॉर्टेस्ट। शॉर्टर वेवलेंथ हाइयर फ्रीक्वेंसी हाइयर एनर्जी वायलेट लाइट, लॉन्गर वेवलेंथ लोअर फ्रीक्वेंसी लोअर एनर्जी रेड लाइट। वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज लेस देन, देखिए वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन वायलेट। विच वन ऑफ द कलर हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो रेड कलर। रेड लाइट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लगभग 700 नैनोमीटर, वाइल वायलेट हैज शॉर्टेस्ट 400 नैनोमीटर। ठीक, इन द विजिबल स्पेक्ट्रम द कलर हैविंग द शॉर्टेड वेवलेंथ इज, अच्छा इसमें सबसे शॉर्ट कौन सा है, वायलेट का, लगभग 400 नैनोमीटर एंड द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ब्लू एंड इंडिगो आर आल्सो शॉर्ट वेवलेंथ बट नॉट द शॉर्टेस्ट। वायलेट का इसमें सबसे शॉर्टेस्ट है। विच वन ऑफ द एमंग हैज द हाईएस्ट एनर्जी, तो जो जिसका शॉर्ट वेवलेंथ रहेगा उसका सबसे क्या रहेगा, एनर्जी हाई रहेगी। तो इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एनर्जी, blue light. Energy of a photon is given by shorter wavelength higher energy. Since blue has shorter wavelength than green, yellow and red, it has highest energy among the options. Since blue has shorter wavelength than green, yellow and red, it has the highest energy. विबग्योर, देखिए विबग्योर जो है ये वायलेट जो है सबसे ज़्यादा क्या होता है, मुड़ता है। Blue light higher energy than others, green light medium energy, red light lowest energy, yellow light higher than red but lower than blue. Which one of the following colors of white light is least deviated by the glass prism? सबसे कम डेविएट किसको किया जाता है, रेड कलर। रेड कलर का एंगल जो है, एंगल सबसे कम होता है। ठीक, और सबसे ज़्यादा किसका होता है, वायलेट का। dispersion of light occur when different colors bend differently in prism.
ड्यू टू वाराइंग रिफ्रेक्टिव इंडिसेस। ठीक, रेड लाइट has longest wavelength and is least deviated, while violet has shortest wavelength and is deviated the most. Violet has shortest wavelength and deviated. Green color deviates more than red but less than blue. Red color least deviated. देखिए ये जो विप ग्योर है हम लोगों का, और देखिए ये जो है सबसे हाई फ्रीक्वेंसी है इसकी, सबसे कम सबसे ज़्यादा एनर्जी है। ठीक, सबसे कम वेवलेंथ है और सबसे कम डेविएशन है। ये अपना रेड का क्या है, सबसे ज़्यादा डेविएशन है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, मतलब वाइट लाइट में, विजिबल लाइट में। हाँ, सबसे कम एनर्जी है और एक चीज़ और, सबसे कम फ्रीक्वेंसी है। ठीक, वायलेट मोस्ट डेविएटेड ड्यू टू शॉर्ट वेवलेंथ। जितनी शॉर्ट वेवलेंथ रहेगी उतना ज़्यादा क्या होगा, डेविएट होगा वो। हाँ, और जितना ज़्यादा इसी वजह से कलर जो है इस ब्लू है ये सब। इन विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट रेड लाइट इज़ मोर एनर्जेटिक देन द ग्रीन लाइट। नहीं, रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है। ठीक, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज़ मोर देन दैट ऑफ ग्रीन लाइट, ये सही है। एनर्जी ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स, एनर्जी रहेगा उतना ही कम वेवलेंथ रहेगा। रेड लाइट हैज़ ए लॉन्गर वेवलेंथ 700 नैनोमीटर देन ग्रीन लाइट 530 नैनोमीटर, बट एनर्जी इज लोअर। एनर्जी ऑफ रेड लाइट 1.77 EV। अब ई क्या है इसमें मैं नहीं जानता। वेयर एज एनर्जी ऑफ ग्रीन लाइट 2.34 EV। ठीक, the sun is visible to us a few minutes before the actual sunrise because क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हाँ, जो एंगल जैसे अलग अलग डेंसर मीडियम में बढ़ता है तो इस वजह से। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बेंड्स सनलाइट टू इंटर, atmospheric refraction bends sunlight to enter sunlight as it enters Earth's atmosphere, making sun appears above the horizon even when it is below. ठीक, the dense lower atmosphere bends light more than the upper layers. These effects also make the sun appear flattened at sunrise and sunset. The dense lower atmosphere bends light more than the upper layer. The dense lower atmosphere bends light more than the upper layer. Scattering of light causes sky color changes. Diffraction of light bending around objects. ठीक, total internal reflection happen inside optical fiber. Atmospheric refraction bends sunlight as it enters Earth's atmosphere, making the sun appear above the horizon, even when it is above it. The denser lower atmosphere bends light more than the upper layer. This effect also makes the sun appear flattened at sunrise and sunset. The sun and the moon appear elliptical near the horizon because of रिफ्रैक्शन की वजह से। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन डिस्टॉर्ट द शेप ऑफ कैलेस्टियल बॉडीज व्हेन दे आर नियर द हॉरिजन। डेंसर लोअर एयर बेंड्स मोर लाइट। जो लोअर एयर जो डेंस रहती है वो क्या करती है, लाइट को अधिक मोड़ती है, बेंड करती है, स्ट्रेचिंग द सन एंड मून वर्टिकल, मेकिंग देम अपीयर एलिप्टिकल। रिफ्रैक्शन ड्यू टू बेंडिंग ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फियर। ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं, पार्शियल कंट्रीब्यूशन है इसका बट नॉट द मेन वो। Interference phenomena happens in waves, not atmospheric. Their actual shape, sun and moon, are spherical in reality. Spherical है, elliptical नहीं है. Twinkling of stars in clear sky during nightmare can be explained by refraction of light. ठीक,
Stars appear to twinkle due to continuous atmospheric refraction. Different layers of air have varying refractive indices, causing light paths to shift randomly. Since stars are far away and point size, these shifts cause fluctuation in brightness, leading to twinkling. Reflection occurs in the atmosphere. Polarization of light, not related to twinkling, interference happens in waves. रेड लाइट इज यूज्ड इन ट्रैफिक सिग्नल बिकॉज इसका वेवलेंथ क्या है, इट हैज़ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. रेड लाइट 700 nanometer has the longest wavelength, making it scatter the least in the atmosphere. This allows it to travel the farthest, ensuring visibility from a long distance. Shorter wavelength, blue or violet, scatter more, making them less effective. It has the longest wavelength current, ensuring maximum visibility. It is beautiful, aesthetic, or not a scientific reason. It is visible to people even in a bad eyesight. Some truth, but not the primary. ऐसा the danger signal is made up of red color. सही है, red color is scattered the least. ये भी जो है सही है, ठीक, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा रहेगा वो उतना ही कम स्कैटर करेगा. इसी वजह से वो क्या होता है, दूर तक दिखता है रेड लाइट. रेड लाइट हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय एयर मॉलिक्यूल्स. दिस इंश्योर्स दैट द रेड लाइट रिमेन्स विजिबल फ्रॉम द फारदेस्ट डिस्टेंसेस, मेकिंग द बेस्ट चॉइस फॉर डेंजर सिग्नल एंड ट्रैफिक लाइट. Why is red light used as a danger signal? Red light is scattered less. ठीक, ज़्यादा वेवलेंथ रहता है इसका, और वेवलेंथ ज़्यादा रहने की वजह से स्कैटर कम करने के चांसेस रहते हैं. रेड लाइट लगभग 700 नैनोमीटर हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द विजिबल स्पेक्ट्रम एंड स्कैटर्ड द लीस्ट बाय एयर मॉलिक्यूल्स. दिस अलाउज रेड light to travel longer distance without much deviation, making it highly visible even in foggy and smoky conditions. Rayleigh scattering states that shorter wavelength, blue and violet, scatter more than longer wavelength, red and orange. Comfortable brightness, rods and costs. Least absorbed in air, red is absorbed slightly, but scattering is dominant factor. Least chemical reaction, not relevant in danger signal. Why does the sky appear blue? Blue color is scattered most. Sunlight consists of all colors with pure. Rayleigh scattering states that short wavelength light, blue and violet, scatters more than long wavelength, red and orange. Since human eye is more sensitive to blue than violet, the sky appears blue. जो हम लोग का मतलब आँख है वो ब्लू के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव है, तो इस वजह से हम लोगों को ब्लू क्या दिखाई देता है, अरे मतलब आसमान क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है. ब्लू कलर इज स्कैटर्ड मोस्ट, करेक्ट, ड्यू टू शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटरिंग. रेड कलर इज स्कैटर्ड मोस्ट, नहीं, रेड हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड स्कैटर्स द लीस्ट. ब्लू लाइट इज मिनिमली एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर, नहीं, रेड कलर. ट्रू, मतलब हाँ ट्रू है ये भी, लेकिन बट नॉट द प्राइमरी रीजन. रेड इज अल्टीमेटली एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर, इनकरेक्ट. रेड रीचेज ड्यूरिंग सनराइज सनसेट ड्यू टू लेस स्कैटरिंग. रेड हम लोग को इस वजह से दिखाई देता है सनसेट और सनराइज के समय, क्योंकि ये स्कैटर कम करता है. वाई इज द स्काई ब्लू? शॉर्ट वेव्स आर स्कैटर्ड मोर than the long waves by the atmosphere. ये सही है. Sky appears blue due to the Rayleigh scattering, which is inversely proportional to the proportional to fourth power of wavelength. Shorter wavelength, blue and violet, scatter more than the longer ones, red and yellow. The human eye perceives blue better than violet, so the sky appears blue. Blue color in the sunlight is more than the colors. गलत है. शॉर्ट वेव स्कैटर्स मोर देन लॉन्ग वेव्स, करेक्ट, बिकॉज ऑफ रेलेक्स. ब्लू कलर इज मोर एब्जॉर्बिंग, नहीं 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 नहीं, प्लीज करते हैं ब्लू कलर. एटमॉस्फियर एब्जॉर्ब लॉन्ग वेवलेंथ मोर देन शॉर्ट. एब्जॉर्प्शन इज नॉट प्राइमरी फैक्टर. ठीक, तो ये हम लोग का
ख़त्म होता है। थैंक यू, बाय बाय। बाकी आगे करते हैं।